गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 9 इसका नेम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। इसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व आपको करवाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो स्टूडेंट्स क्या दिया क्वेश्चन में? एक बिल्डिंग है, so this is the height of building and 20 मीटर हाई बिल्डिंग। स्टूडेंट्स ये इसकी हाइट 20 मीटर है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है, टावर। तो ग्राउंड पर स्टूडेंट्स एक पॉइंट है, ये अर्थ लेवल है, इस पॉइंट से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ये स्टूडेंट्स गिवन है, ये 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। So students, AB be the height of a building and AC be H meter high a tower. A, B, C and D is a point on the ground. So the distance between a point and the base of the building is x meter. Total distance of building and tower h plus 20 meter. So this is the height of the total height of the building and a tower. So let's start students. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जर्वर नीचे खड़ा होता है और ऊपर रखी ऑब्जेक्ट को देखता है, यहाँ से पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ द टावर। ये एंगल 60 डिग्री का है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, इसके बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। फिर अगेन इस पॉइंट से इसके टावर के बेस बॉटम का एंगल 45 डिग्री है। सो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। दीज आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट डी। स्टूडेंट्स, लेट AB be 20 meter high a building and AC be H meter high a tower. Okay, the angle of elevation from the point D, the angle of elevation from point D to the bottom of the tower and the top of the tower are 45 degree and 60 degree respectively. Okay, according to diagram.
अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देखेंगे स्टूडेंट्स ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर जो हमको गिवन है क्वेश्चन में। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन ए सी इज इक्वल टू एच मीटर and BC is equal to H plus 20 meter and angle ADB is equal to 45 degree and angle CDB is equal to 60 degree and BD is equal to X meter. सो स्टूडेंट्स जो डायग्राम में मेंशन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब हम नाउ बी टेक ट्राइंगल ए बी डी, दिस इज आल्सो राइट ट्राइंगल एंड इन सेकंड टाइम बी टेक एंगल ट्राइंगल सी बी डी। ओके स्टूडेंट्स आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्राइंगल पर ही लागू होती है। ट्राइंगल कैसा बनता है? राइट, उसी पर ही हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ इन अ राइट ट्राइंगल ABD this is right angle triangle, so this is perpendicular and this is base, perpendicular upon base tan theta, so tan theta is equal to perpendicular upon base, that is tan theta. The value of acute angle in this triangle 45 degree. Perpendicular means AB side, base means BD side. The value of tan 45 1 upon 1 AB 20 BD x. So cross multiplying x का 1 में x 20 बन जाए 20 meter. Students, the distance between a point to the bottom of the building is 20 meter. Again in right angle triangle CBD. Students, tan theta is equal to, this is base in whole triangle CBD, this is base and this is, so this is height and this is base, BC upon BD, perpendicular upon base. Tan theta acute angle in this triangle 60 degree and BC is H plus 20 and BD upon X. So students, the value of tan 60 degree is root 3 is equal to H plus 20 upon X. Okay, now by cross multiplying we get H plus 20 is equal to X under root 3. So this is the equation of second according to the condition. Now we put the value of x in equation second. Putting x is equal to 20 in equation second. Then we get, स्टूडेंट्स x के प्लेस पर x की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो क्या आएगा? h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 रूट 3.
x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट कर दी। स्टूडेंट्स हमको h की वैल्यू फाइंड आउट करना है +20 -20। ओके, h इज इक्वल टू 20, कॉमन लेने के बाद √3 - 1। ओके, the value of √3 is 1.732, you know all। √3 is 1.732 minus 1 is equal to h 20 into 0.732, h is equal to 0, so 14.64, this is the height of the tower, hence height of the tower is 14.64 meter answer। सो स्टूडेंट दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, और यही हमको फाइंड करना थी इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या था, हम इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। इसमें एक पॉइंट है ग्राउंड पर स्टूडेंट्स, और कुछ डिस्टेंस पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर ऑलरेडी गिवन है। इस बिल्डिंग पर टावर लगा हुआ है, उस टावर की हाइट हमको फाइंड करना है। कंडीशन क्या है इस पॉइंट का, ये पॉइंट टावर के बॉटम के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और यही पॉइंट टावर के टॉप के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो उनको क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना थी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन समझ में आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।